All right. Looks like we're live now. Hello everyone. Welcome back to your channel Study IQ IAS and Women in Work Career 24/7. मेरा नाम है Udisha. We have been conducting these classes. This is the 5th session and the topic is very clear to everybody. क्यों कर रहे हैं हम ये classes? आपकी communication, soft skills, overall personality के development के लिए जितने भी लोग interested हैं इस particular topic से relate करते हैं, इसके बारे में concerned हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत solid opportunity है. आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक रेयरली डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट की, विच इज प्रेजेंस. पहले मैं आपको ये दिखाने वाली हूं कि जब एक बेसिक कम्युनिकेटर बात करता है, जब एक लेट्स से ऑलमोस्ट डल कम्युनिकेटर बात करता है, तो वो किस तरीके से बात करता है. एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू when somebody whose communication is a unique factor, somebody who is not defined by the way he or she looks or the way he or she dresses, rather by the way that person speaks, by the way that person presents himself or herself. That is why today's session is very, very important. There are 4 important factors that any solid communicator needs to work on. But first of all, let me give you some very quick examples. Number 1, for example, somebody says a simple sentence like this. You are in your workplace and you liked somebody's idea, you liked somebody's way of presenting something, you liked somebody's suggestion, and then you end up saying something like this. You say, well, that's a really good point. Well, that's a really good presentation. Well, that's a really good idea, etc. Right? And what are you doing right now? You're just adding up some words, putting it out there, बात खत्म. लेकिन जब आपको जेन्युइनली, मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई डेलीगेशन आई है, मान लीजिए कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ पहला इंटरैक्शन है और वहाँ पर आपको ये सेम चीज़ कहनी है और आपके पास शायद बोलने के 2-3 मौके होंगे. प्रॉब्ली यू गेट टू स्पीक लाइक 2 sentences ओनली थ्रू आउट द मीटिंग और उसमें आप कुछ ऐसा बेसिक बोल रहे हैं, देन यू आर एक्चुअली मेकिंग अ मिस्टेक. इससे बेहतर होगा दैट यू से समथिंग लाइक, वेट, से दैट अगेन, दैट रियली मैटर्स, दैट एक्चुअली मैटर्स. If you cannot, let's say somebody is senior to you, then in that case, sir, I would request you to kindly repeat that because I personally believe that it really matters a lot. Look at the difference. And somebody who is not involved with the conversation, somebody who's not present in the moment, can never come up with these kinds of sentences. As I told you yesterday, that framing your sentences is about grammar also, it is about vocabulary also, it is about maybe the framework also, but all of that goes into like the 10% of it. 90% of making a good sentence depends on number 1, your presence. आप सामने वाले की बातों को कितने अच्छे से सुन रहे हैं, आप अपने आप को कितना ज़्यादा वहाँ पर मौजूद रख पा रहे हैं. कोई बात कर रहा है, आप जोन आउट कर चुके हैं, you are not even a part of the discussion anymore, and then you come back and like, yeah, that's a very good point. Nobody wants you to do a favor to them. कोई किसी के ऊपर एहसान करने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप इन्वॉल्व ही नहीं है उस कॉन्वर्जेशन में, तो आप कुछ भी बोलेंगे ना, रैंडम स्टफ. बट अगर आप जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं, आपने किसी चीज़ को वाकई सुना है, ऑब्जर्व किया है, कैलकुलेट किया है कि इसके आउटकम्स कैसे होने वाले हैं, इसका आउटकम कैसा होने वाला है, तो तब जाकर के आप एक रियल, जेन्युइन एंड परसेप्शन ड्रिवन स्टेटमेंट बोलते हैं. सो जितने भी लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन इज ओनली अबाउट वोकैबुलरी, इज अबाउट अ सर्टेन लैंग्वेज, इट्स अबाउट अ सर्टेन ग्रामर, ब्रेक दैट मिथ. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखो, उन चीज़ों को हम सीखते हैं बचकाने लेवल पे, जहाँ सीख लेना चाहिए. लेकिन अब अगर आपको ज़रूरत है एडवांस लेवल कम्युनिकेशन की, अगर आप जेन्युइनली अपने वर्क प्लेस प्रेजेंस को मजबूत बनाना चाहते हैं, यू वांट टू स्ट्राइक दैट प्रमोशन ऑफ योर चेकलिस्ट, यू वांट टू गो फॉर लाइक स्टडीज अब्रॉड, you want to probably clear a nice interview of a certain competitive examination, then you'll have to stop being a robotic speaker. You'll have to be a very natural, very confident and a very calm speaker.
And how do you do that? By working on the things that I'm precisely telling you about. Now moving on, another example. I see what you mean, but I think differently. Okay. आप किसी को कहना चाहते हैं कि जो आपकी राय है और जो मेरी राय है वो दोनों अलग हैं, ठीक है. अब बहुत सारे लोग कहते हैं I disagree, right? I don't agree with you. I don't support that. I don't second that. Okay. You're not wrong. See, what happens is जब आप directly किसी को काउंटर कर देते हैं, whether that's during a meeting, that's during an interview, आप किसी को काउंटर करते हैं and मानिए या ना मानिए, बहुत मेजर ह्यूमन नेचर है कि वो तुरंत आपको एज एन एनिमी परसीव करता है. जैसे आप कहते हैं नहीं नहीं आपकी बात ठीक नहीं है. इसीलिए कभी भी बहुत अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कभी भी मत लो. अगर आप पुराने समय के राजाओं महाराजाओं वॉर्स एंड श्री कृष्ण का जो पूरा डिस्कशन था दुर्योधन एंड टीम के साथ, आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए. वो कभी भी ऐसे अग्रेसिव होकर बात करने नहीं जाते थे. यू गाइज आर रॉन्ग, यू कांट डू इट. आप सोच के देखिए, वो तो ऐसे चुटकी बजाते हैं, एवरीथिंग वुड हैव बीन ओवर. बट व्हाट डिड ही प्रेफर? टू गो देयर, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, समझाने की कोशिश की कि आधा नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा. और आज भी 2 देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन वहां पर बातचीत, अब ठीक है कुछ चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी ट्विटर के थ्रू लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देशों में युद्ध चल रहा होता है. और अगर वो शांत होना होता है तो प्रॉपर टॉक्स होती हैं, फॉर्मल टॉक्स होती हैं, राइट? तो आप जिन बातों से युद्ध शांत कर सकते हैं उससे समझिए कि किसी को ये बोलना कि यू आर रॉन्ग, आई डोंट अग्री विद यू, आई डोंट सपोर्ट दैट, आई डोंट सेकेंड दैट एटसेट्रा, ये ना बोलें. नेगेटिव वर्ड्स को हटाते जाइए, ठीक है? डोंट, नॉट एटसेट्रा जितना कोशिश करें हटाएं. और उसकी जगह पहले उनको दिखाइए कि नहीं ठीक है आप भी अपनी जगह सही है, बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि 2 इंसान हैं, 2 अलग तरीके से चलते हैं. सो नंबर 1 यू आर सेइंग यू आर नॉट रॉन्ग. You're not wrong. And then you say, I just live in a different part of that answer. Funny, easy, nothing too strong. I just live in a different part of that answer का मतलब कि मेरा नजरिया कुछ और है. उस आंसर का एक हिस्सा ऐसा है जिससे हम सहमत हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जिससे हम सहमत नहीं हैं. तो बात करने का तरीका, स्टैंडर्ड, स्टाइल, टोनैलिटी, मॉड्यूलेशन, हर चीज़ डिसाइड करती है कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं या नहीं है. वक्ता अलग होता है, कम्युनिकेटर अलग होता है, याद रखिएगा. नाउ मूविंग ऑन, यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे. किसी ने आके आपको बोल दिया यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे, आप खुश हो जाते हैं. लेकिन इससे और बेहतर फीलिंग आपको कब आ सकती है? अगर कोई आपसे कहता है, आई डोंट से दिस ऑफन, मैं अक्सर कहता नहीं हूँ या कहती नहीं हूँ, बट वॉचिंग यू हैंडल दैट वॉज समथिंग. आप अच्छा, अगर मैं आपको रोज कॉम्प्लीमेंट करूं कि बेटा यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब, यू हैव ब्लोन माई माइंड एंड यू आर आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है काम डाउन, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट कोई ऐसा इंसान जिसने आपको प्रॉब्ली पिछले पूरे 1 महीने में कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है एंड कम्स स्पेसिफिकली टू यू एंड सेज आई डोंट से दिस ऑफन बट सीइंग यू हैंडल दैट एंड द वे यू डिड दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, राइट? एंड दैट वाज समथिंग. भाई वो कुछ अलग ही था. हिंदी में भी हम लोग कहते हैं भाई कुछ अलग ही लेवल का खेल था. अंग्रेजी में हम कहते हैं दैट वाज समथिंग डिफरेंट, राइट? तो बात आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर आप देखिए कितने साधारण शब्दों का इस्तेमाल है. नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. मैंने यहाँ पर कोई जार्गन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ऑर्नामेंटेशनल फ्रेजेस, इडियम्स एटसेट्रा नहीं डाले अभी तक. लेकिन आप देखिए कि कैसे सेम बात को कहने का तरीका मैंने हल्का सा बदला है एंड द एंटायर अथॉरिटी, क्लास, क्लैरिटी, सब कुछ इम्पैक्ट हो रहा है उससे. ये सीखना है आपको. आपको समझना होगा कि भाई देखो कम्युनिकेशन बाय फ्लूक नहीं आती है किसी को. बाय फ्लूक किसी को कम्युनिकेशन नहीं आ सकती. इट्स ऑलवेज अ वेरी इंटेंशनल सेट ऑफ एफर्ट्स दैट वी पुट इनटू इट दैट डिलीवर्स. वो हमें कम्युनिकेटर बनाता है. अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ. जैसे अभी तक आपने 3 चीज़ें देखी, मैं बस कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप रोज़मर्रा की बातों में भी उन चीज़ों को इन्वॉल्व करें. लेकिन पहले समझिए कि जैसे ये सेंटेंस और ये, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? ये और ये डिफरेंस क्या है, ये और इसका रिप्लेसमेंट डिफरेंस क्या है. सो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दैट ऑल्सो. देयर आर 4 things that you have to understand and you will have to work upon अगर आप एक अच्छे सॉलिड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, ठीक है? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
पहले तो याद रखना कि बैच हमारा कंप्लीट बैच 30 डेज का 17 मई से स्टार्ट हो रहा है. अगर आप सीरियस हैं, आपको जेन्युइनली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने सॉफ्ट स्किल्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, माइंडसेट पर, पंक्चुअलिटी पर, लीडरशिप स्किल्स पर, इन सारी चीज़ों पर काम करना है, तो ये जो बैच है हमारा जो 17 मई से स्टार्ट हो रहा है, 17 मई, उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा. फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़ कि उसका स्टडी प्लान देखिएगा आप लोग. हाउ कॉम्प्रिहेंसिवली दैट बैच हैज़ बीन प्लान्ड. लगभग 4 हफ्ते का वो बैच है जिसमें आपको हर दिन क्लोज टू 1.5 घंटे की क्लास मिला करेगी लाइव, एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज. वो 2 दिन आपके प्रैक्टिस के हुआ करेंगे. ठीक है. Ma'am, you are correct. When I disagree with something, I also use, you're also correct, but in my opinion. That's very good, Ashi. And I have full faith कि आप ऐसा करती हैं because I have known you for a while. तो मुझे पता है कि आप definitely ये follow करती होंगी when you say that. अच्छा, जो क्या हो गया? जो तो हाँ होता है कभी कभी because I'm thinking. और अभी बहुत जब मैं बहुत पढ़ा रही होती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में चल जाती हूँ, तो समहाउ आई फील ओवर स्टिम्युलेटेड. मतलब मुझे लगता है कि आई एम वेरी एक्साइटेड इन दैट मोमेंट. तो ऐसा कई बार होता है मेरे साथ कि मैं फंबल करूँगी या एक ही शब्द को मिक्स करके, स्पूनरिज्म जिसको बोलते हैं, वो जैसे होता है नहीं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाचा, तो इसमें वो च का गड़बड़ हो जाता है. ओ बाय द वे, अब वो सुना है आप लोगों ने अलंकार? हिंदी में होता है ना अनुप्रास अलंकार, चारू चंद्र की चंचल किरणें, राइट, दैट इज अनुप्रास. तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलिटरेशन. तो जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो वो चंदू के चाचा में कई बार गड़बड़ जाता है, चंचू के चाचा, व्हाटएवर बिकम्स लाइक दैट, है ना. सो ये चीज़ें जो होती हैं ना हमारे साथ बोलते बोलते, ये इसलिए भी होता है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं. अगर आप शांत हैं, सॉर्टेड चल रहा है, आप इजीली बात करेंगे, कंफर्टेबली बात करेंगे, आप अचानक से बहुत खुश हो गए हैं, इट इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. लेकिन अगर आप अचानक से दुखी हो गए हैं तो भी वो इम्पैक्ट होगा. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी इमोशंस को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसको भी कंसिडर करिए कि बात करते वक्त, इंटरव्यू देते वक्त, किसी के साथ इंटरेक्ट करते वक्त आप अंदर से फील क्या कर रहे हैं. दैट नीड्स टू बी पेड अटेंशन. ठीक है. 2, तो ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि प्यास लगती है गाइस, तो माफ़ कर देना, पानी पी लिया गया है. चलिए जनता, आगे बढ़ते हैं. पहली चीज़ हमने आपको समझाई कि भाई देखिए, प्रेजेंट होना सीखिए. जब आपके साथ बातचीत हो रही है, वार्तालाप आपकी चल रही है किसी के साथ, यू आर हैविंग अ गुड कॉन्वर्जेशन, डोंट जोन आउट. कृपया उसी जगह पर रहें. जो बातचीत चल रही है वो क्या, कैसी बात हो रही है, क्या चीज़ें कही जा रही हैं, सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है वो बातें करते हुए, सामने वाले के रिएक्शंस कैसे हैं, क्या उसके हाव भाव से लग रहा है कि वो बोल कुछ और रहा है और सोच कुछ और रहा है. यू हैव टू बी वेरी हेविली इन्वॉल्व्ड with the conversation and the person you're having the conversation with. Okay, so I would first of all talk about presence. So आप जब भी चाहते हैं कि आपकी conversation बढ़िया जाए, अच्छी जाए, please make sure that you're present in that conversation. Number 2, let's talk about timing. देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि किस जगह पर आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं. It's very very important. अचानक से कुछ भी कहीं भी बोल देना is a sign of foolery. हर जगह वो चीज़ नहीं चलेगी, हर स्थिति में नहीं चलेगी, हर समय नहीं चलेगी, हर इंसान के साथ नहीं चलेगी, राइट. प्रॉबेबली वो सेम जोक आप हमारे साथ क्रैक कर सकते हैं, बट आप अपने पेरेंट्स के साथ क्रैक नहीं कर सकते. प्रॉबेबली वो सेम जोक आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्रैक कर सकते हैं, हमारे साथ क्रैक नहीं कर सकते. यू गेटिंग द पॉइंट हियर. वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग. ये जो हमारी आदत होती है ना, किसी ने कुछ पूछा, हमको फटाक से जवाब देना होता है. रीजन नंबर 1, हमको फटाक से जवाब क्यों देना है? जैसे किसी ने कुछ पूछा, सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. सोचा भी नहीं आज तक कि अगले 5 महीने बाद हम कहाँ होंगे, बट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years आप तुरंत जवाब देने के लिए छलांग लगा देते हैं. क्यों? रीजन जानना है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो कहीं इनको ये ना लगे कि हम थोड़े से मंदबुद्धि हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. जब आप कोई फालतू का जवाब देते हैं, कोई बिल्कुल ही बेसिर पैर की बात कर देते हैं, तब आप मंदबुद्धि साबित होते हैं. चुप रहने से आप मंदबुद्धि साबित नहीं होते हैं. People who pause, people who maintain that rightful silence
आर जनरली मोर क्लियरली हर्ड, उनकी बातों को ज़्यादा सफाई से सुना जाता है। तो पॉज करने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि सोच के बोलता है ये इंसान, केयरफुल स्पीकर है। 5 साल में कहा देखते हैं पहाड़ों में रहेंगे 5 कुत्ते पाल लेंगे, कूल मत बनो, सोच के बोलो, सोच के बोलो, है ना। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे अभी तक अच्छे से नहीं आता, तो क्या मुझे आप जो पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या मुझे बैच लेना चाहिए, बस एक बात याद रखिए कि 18 साल से ज़्यादा के हैं ना आप, तो मतलब आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ग्रोन है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो हम उस पर काम करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि छोटे बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बस डिफरेंस ऑफ क्राउड हो जाता है। एक तरफ कोई 40 साल का बैठा हुआ है, एक तरफ कोई 15-16 साल का बच्चा होता है, तो वो साथ में कोऑर्डिनेट करना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो मैम, इन द कोर्स दैट वील बाय, विल यू लिसन टू आवर रिकॉर्डिंग्स डेली? आई विल डायरेक्टली स्पीक टू यू। रिकॉर्डिंग क्यों सुनेंगे आप, और हम लाइव कनेक्ट किया करेंगे, लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव प्रैक्टिस होती है, लाइव फीडबैक होता है आयुष, ठीक है। सो इसीलिए ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन से एग्जाम की टेस्ट सीरीज आप लगा रही हैं, लगा रहे हैं, लगा रही हैं? कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो बेटा आप कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन से एग्जाम की बात करें? कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं आप लोग, है ना। चलिए, तीसरी चीज की बात करेंगे, स्पेसिफिसिटी। थोड़ा क्लैरिटी रखो किस बारे में बात कर रहे हो। अभी जैसे बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, मैम मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ, 10 घंटे पढ़ती हूँ, टेस्ट सीरीज में नंबर बहुत कम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन सा टेस्ट, है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, बीइंग वेरी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक कि किस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं, किस विषय में आप बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, बात करने की जरूरत भी है कि नहीं। Being clear and specific is very important in your communication. Somebody says it's too high price, चलेगा, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन बैच का वैल्यू देखिए, बैच का टाइम टेबल देखिए, स्टडी प्लान देखिए, हमारे एफर्ट्स देखिए, आप क्या सीखेंगे उससे वो देखिए। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के बैचेस लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के भी आते हैं। आप कहिए तो मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ, लेकिन चलिए जी। एंड लास्टली एवरीवन, रेस्ट्रेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट quality to have if you want to be a good speaker, if you want to be a good communicator. हर चीज को पूरे अंत तक पहुंचा देना जरूरी नहीं है। कभी कभी इतना कहना ठीक होता है कि दिस इज ऑल, दैट्स इट, है ना। अब जैसे लोग अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं, जो ऑफिस जाते हैं वो रिलेट करेंगे, जब प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे तो ऐसे खत्म करते हैं, ओके फाइनली दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, आई रियली होप आई डिड नॉट डिसअपॉइंट यू, आई वाज रियली वेरी टायर्ड, आई हैव वर्कड हार्ड ऑन दिस पीपीटी। इतना क्या कर रहे हो, हैं, टायर्ड, डिसअपॉइंट, ऑल नेगेटिव वर्ड्स करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू कैन डू, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? लेट्स डाइव इनटू देम। खत्म हो गई आपकी प्रेजेंटेशन। उसके बाद अलग से अपने दोस्तों के साथ बैठो जो समझेंगे तुम्हारे पॉइंट्स को, तो उनको बताना कि हमने बहुत मेहनत किया, हमने नहीं की, हमने अच्छा किया या नहीं किया। करेक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी। अगर हम बात करना चाहते हैं, अच्छी बात करना चाहते हैं, और जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं, सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं हो रही, आप किसी भी भाषा में बात करिए, ये 4 चीजें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर जगह हर कुछ बोलना, ओवर शेयर करने लगना, एक्स्ट्रा बोलने लगना, नॉट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी सिर्फ इतना कहना दैट यू लुक रियली हैंडसम, यू लुक रियली ब्यूटिफुल, फुल स्टॉप, इनफ है। अब कुछ लोग, अरे आप लगती ही ऐसी हैं, आप तो हैं ही वैसी, दिस इज रियली वियर्ड। आप दूसरों को वियर्ड आउट कर देते हैं, है ना। तो कंट्रोल करके बात करना भी सीखिए। खैर, मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे अभी आपको मैंने ये सेंटेंसेस दिखाए हैं, अब आप देखिए, सॉरी आई एम लेट, देयर वाज ट्रैफिक। एक ये होता है बात करने का तरीका कि जी हम तो लेट हो गए ऑफिस के लिए क्योंकि बड़ा ट्रैफिक था बाहर। अब यहाँ देखिए, आई मिस्ड द बिगिनिंग बट आई कॉट इनफ टू नो दिस रूम इज इंटरेस्टिंग। आप कहीं पहुंचे हैं, कहीं मीटिंग में, बट आई कॉट इनफ टू नो दैट दिस मीटिंग वाज रियली इंपॉर्टेंट। आप गए, मीटिंग जब खत्म हो गई तो कभी कभी मैनेजर पूछता है, यार तुम लेट आई थी, बताओ क्या रहा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है मीटिंग में? आई मिस्ड द बिगिनिंग बट आई कॉट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट दिस मीटिंग वाज रियली इंपॉर्टेंट।
मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अच्छा किया कि आपने मीटिंग रख लिया है, हम थोड़े से लेट हो गए थे। इतना एक्सप्लेन नहीं करना है कि ट्रैफिक था, मम्मी ने डांट दिया था, मेरा तो लंच नहीं बना था, क्योंकि कई बार सामने वाला आपको मुजरिम नहीं समझ रहा है, बट आप इतना एक्सप्लेन करते हैं कि लगता है कि आप कोई अपराधी हैं। इतना एक्सप्लेन करना हर जगह जरूरी नहीं होता है ना। सो हैविंग अ गुड कॉन्वर्सेशन, understanding that you are not supposed to be treated like the low one all the time is very important. Moving on everybody, this is your batch that I was talking about. ये आपका बैच है, इसका प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 2499 रुपीज़ है। आप में से जितने लोग सीरियस हैं, फ्यूचर में इंटरव्यूज़ देने हैं, नौकरी करनी ही है, पढ़ाई करनी है, आपको इंटरव्यूज़ देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप खुद कहीं टीचर हैं, पढ़ाना है बच्चों को, तो अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये 2500 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि मैं इस पर बात नहीं करती, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है दैट द बैच promises to teach you so much that you can actually monetize your skills after that. आप ये skills जो सीखेंगे, इसके दम पे आप पैसे कमा लेंगे। अगर आपके पास ये skills नहीं है, this is 2026. I mean, this is not even like 1992. जब मुझे explain करना पड़ता कि 1992 तो मैं पैदा हुई थी, तो कैसे explain करती। But खैर, तो getting my point, everybody. Right? It honestly becomes a very awkward conversation for me to be explaining कि क्यों इतने पैसे का है, weird है ये, नहीं करेंगे हम इसको एक्सप्लेन। अच्छा बैच है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। लास्टली कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। इट वाज नाइस मीटिंग यू। आप लोग हमेशा जब किसी अच्छे बढ़िया इंसान से मिलते हैं तो आप कहते हैं कि इट वाज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा सेंटेंस है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी जगह कुछ ऐसा कहते हैं, आई रिमेंबर दिस वन, राइट, मतलब ये मीटिंग याद रहेगी, ये एक्सपीरियंस याद रहेगा, तो कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना, आई रिमेंबर दिस वन। तो पूछेगा व्हाट वुड यू रिमेंबर, द मीटिंग, the meeting. See, again, this is how confidence speaks. You don't have to explain everything, right? बेटा बैच का नाम पूछ रहे हैं जो लोग, आप ये देखो, ऐसा दिखता है बैच। इस बैच का जो प्रोडक्ट लिंक है ना, जो आपको डायरेक्टली बैच पे ले जाएगा, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उस पर क्लिक करिए, सीधे बैच में जाइए, UM लाइव कोड लगा दीजिए, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 17 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ बैच स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस जूम पे हुआ करेंगी ताकि आप और हम लाइव इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है? ओके, ठीक है। बैच के सारे डिटेल्स जब आप बैच पे पहुंच जाओगे ना अमन, तो वहां आपको मिल जाएंगे बड़ी। ऑल राइट, मूविंग ऑन एवरीबडी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। जब हमें किसी की मदद की जरूरत होती है तो हम कहते हैं आप मुझे इसमें कुछ मदद कर सकते हैं एटसेट्रा, बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी से आई वुडंट आस्क इफ आई हैड एनीवन बेटर टू आस्क, है ना, मैं आपको नहीं बोलूंगी अगर कोई और होता तो। मतलब कई बार ऐसा होता है, यार अब तुम्हारा ऑफिस में लैपटॉप खराब हो गया, तुम सीधे बॉस के पास थोड़ी चल जाओगे, सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया, जरा मदद कर दीजिए, नहीं ना। So sometimes it's funny to say things like this. I wouldn't ask you if I had anybody better to ask, but there's nobody in the office. It's like 5 a.m. 5 a.m. पे खाली बॉस ही होते हैं ऑफिस में, मुझे लगता है हमारे बॉस होते हैं। मैम मुझे कोई डिस्कशन भी नहीं चाहिए, मुझे बस ज्वाइन करना है। आप बिल्कुल कर लीजिए भाई, लेकिन डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। वहाँ आके आप ऐसा बहाने बनाएंगे कि हम बोल नहीं पाएंगे मैम, हमको तो डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होता है, वो ज़्यादा होता है। बट देखिए क्या होता है ना, आप अपनी स्टाइल बोलने की बदलनी चाहिए। आप अब you're trying to be funny, you're trying to be relevant, you're trying to be awkward, सब कुछ होना पड़ता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से इंसान बात करता है, और वो बदलाव आना चाहिए। अब अगर हम भोजपुरी में, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे हम जब भी जाएंगे तो जो वहाँ गांव के लोग मिलने आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप शहर से आई हैं आज ही, राइट, तो वो शहर नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं शहर। बिट्टी शहर से आवत हूँ का, दिस इज हमारे यूपी प्रतापगढ़ की लैंग्वेज, राइट। तो अब हम वहाँ पे हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे हाँ हम शहर से आवत ही, नहीं, हम शहर से आवत ही। सो अंडरस्टैंड, हर लैंग्वेज का अपना एक ब्यूटी होता है, आपको उसे बोलते वक्त उच्चारण वैसा कर लेना चाहिए, और ये समझ अगर आप जाते हैं, मजे हैं लाइफ में, फिर सब सेट है, ठीक है। चलिए लास्ट सेंटेंस आपको दिखाते हैं यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ये ठीक नहीं लग रहा है हमें, जैसे कुछ बच्चे हैं परेशान हैं, मैम ये लाइव होगा, ये टाइमिंग क्या होगी, ये वो, तो अगर कहते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट द बैच, या लेकिन
इसकी जगह आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, दैट डिजर्व्स अ रियल आंसर, नॉट वन आई मेक अप ऑन द स्पॉट। अब अगर जैसे आपने मुझसे कहा मैम क्या टाइमिंग रहेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, या नहीं पता है हमको, है ऐसा बोल दें, या दैट डिजर्व्स अ रियल आंसर, नॉट समथिंग दैट आई जस्ट मेक अप स्टैंडिंग हियर। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली विजिट द वेबसाइट, चेक इट फॉर योरसेल्फ, एग्जैक्ट टाइमिंग्स आर रिटन देयर, राइट। तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ज़्यादा बेहतर हुआ, तुरंत कॉन्टेक्स्ट बदल गया उसका। अब देखिए, एक फाइनली जाने से पहले बस सिंपल सी बात आपसे हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से, कि जब आप बात करते हैं, ये हमने पहली क्लास में मेंशन किया था आप लोगों को, डोंट ट्रीट इट लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि आप ये हैं और जो आप बोल रहे हैं वो एक कुछ अलग ही एंटिटी है, ऐसा नहीं होता। You have to speak from your soul, from your heart, from your brain, from your face, from your entire body. When you talk, it needs to come across. वो दिखना चाहिए कि आप बोलने को कितना एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग अच्छा बोलते हैं, आप देखें उनके एक्सप्रेशंस भी मूव होते हैं उनके, चाहे वो धीरे धीरे ही बोलते हो, वो मेरी तरह हाइपर होना ज़रूरी नहीं है, हमेशा पर्सनालिटी ट्रेट्स एक जैसे नहीं, बट आप देखें कि उनके, अगर वो एक बहुत सौम्य टाइप के आदमी है तो आंखें बंद कर लेते हैं बोलते बोलते, फिर वो थोड़ा सोचते हैं, फिर वो ऊपर देखते हैं। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल, बट जो लोग वाकई बोलने को एंजॉय करने लगते हैं, बिकॉज इट्स एक्चुअली इम्पेरेटिव कि आप इसको एज वन ट्रीट करें ना, आपके एक्सप्रेशंस, टोन्स एंड एवरीथिंग, एंड योर स्पीकिंग ऑफ कोर्स, ये सब, दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड एज वन, ये एक यूनिट है, ठीक है। एनीवे, तो आप लोगों का बैच आपको दोबारा दिखा दिया है, इसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करें, यूज़ करें कोड UM Live। आप लोगों से मुलाकात होगी 17 मई को, और टाइमिंग वगैरह के मामले में एक बार जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ स्टडी प्लान और टाइमिंग सारा कुछ लिखा हुआ है बेटा। थैंक यू, ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड हमारे बैच की टाइमिंग 4 to 5 PM हुआ करेगी, वैसे 1.5 घंटे की क्लास होगी तो वो 5:15, 5:30 भी जा सकता है, बट आप जानकारी रखें यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।